السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ اور اگر آپ نے میرا لاسٹ ولاگ دیکھا ہوگا تو ہم لوگ اس ولاگ میں جو ہے مکہ سے نکل گئے تھے مدینہ کے لیے، تو یہ بس ہمارا وہی سفر چل رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ جو ہے پہنچ گئے تھے مدینہ اسٹیشن۔ آ گئے ہیں ہم لوگ مدینہ اسٹیشن، اور یہ باہر سے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہاں سے باہر نکلنے کے بعد جو ہے سامنے ہی بالکل آپ کو ٹیکسیز مل جائیں گے اور بسز بھی اویلیبل رہتی ہیں، تو وہاں وہ آپ لوگ جو ہے ہائر کر لیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں مدینہ۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے حرم شریف۔ یہ جو ہے بس اس کے باہر کا ہی تھا، اور جب ہم لوگ اسٹیشن سے باہر نکلے تو وہاں جو ہے افطار باکسز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے، تو ہم لوگوں کو وہ بھی ملے، وہ بھی بڑے اچھے سے پیک وغیرہ ہو رکھے تھے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سامنے سے جو ہے بالکل دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا سب حرم کا ایریا۔ تو ہم لوگ بس جو ہے پہلے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا فریشن اپ ہو کر پھر جو ہے باہر نکلے۔ یہاں پر ہم تھوڑے پیکٹس بنوا رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں عید پر جو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد ہو گیا تھا نماز کا وقت، تو بس ہم لوگ جو ہے حرم کی طرف ہی جا رہے تھے۔ اور بس یہاں پر امی جو ہے میری خالہ سے مل رہی تھیں، وہ آئی ہوئی تھی، تو یہ خوشی بھی الگ ہی ہوتی ہے جب مدینے میں کوئی اپنا ملے۔ وہ دیکھ رہی کون؟ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ساتھ میں ہی بیٹھے اندر آ گئے تھے ہم لوگ مسجد میں، اور یہاں پر جو ہے افطار کی سب پریپریشن شروع ہو گئی تھی، اور جو ہے ادھر جو ہے امی اور خالہ جان جو ہے وہ آپس میں باتیں بھی کر رہی تھیں بیٹھی ہوئی، تو یہ بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ساتھ میں ہی تھے بہت ٹائم سے، تو بس یہاں پر وہی سب چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں، یہ کتنی خوبصورتی سے پورا سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ یہ ڈومز جو ہیں یہ سلائیڈنگ ڈومز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے سلائیڈ ہو کر اوپن بھی ہو جاتے ہیں، تو پورا آسمان دکھتا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ افطار کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر، یہ سب یہ پیکج ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں افطار کے لیے، سب افطار کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ سیٹ ہو گیا ہے ہمارا افطار۔ یہاں پر ہمیں گڑیا باجی نے سکھائی ہے ایک عریبک ڈش، جو گڑیا باجی نے عریبک ڈش سکھائی ہے جو کہ انہیں کسی عریبین نے بتائی تھی۔ یہ دہی، اس میں یہ مسالے کا سیشے دے رکھا ہے، وہ مکس کریں اور پھر کھجور ڈال دیں اس میں بہت ساری، مکس کریں گے جی یہ رہا ہمارا بھی یہی ہے۔ ابھی چاند نہیں دکھا ہے بھائی، اور انڈیا سے سب کی کالز اور میسیجز آئے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں پر مغرب کی نماز بھی نہیں ہوئی تھی، سب کے آئے چلے جا رہے ہیں، آئے چلے جا رہے ہیں، تو سب کو باری باری سے بتانا پڑ رہا ہے کہ ابھی ویٹ کرو بھائی، ابھی نہیں ہوا ہے چاند۔ اور یہاں پر ابھی بس سب مغرب کی نماز پڑھ کر نکلے ہیں، اور ہم بھی نکل گئے ہیں باہر، بھائی سے ملنے جا رہے ہیں، اور خالو بھی ہیں ادھر تو ان سے ملتے ہیں۔ مبارک ہو، تم بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ اس کے پیچھے جنت البقیع ہے، یہ سارا آدمیوں کا سیکشن ہے نماز پڑھنے کا، اور اس کے پیچھے جنت البقیع۔ ابھی تو یہ سب بند ہے اس کا راستہ، تو بس بھائی آ گئے ہیں، خالو جو ہیں وہ ہوٹل چلے گئے ہیں، تو ان سے وہیں مل لیں گے، اور بس امی، گڑیا باجی، بھائی اور میں۔ مٹھائی بنا پہنچ چکا ہے مدینہ۔ یہاں پر ہو گئی ہے تراویح عشاء وغیرہ، اور اس ٹائم بج رہے ہیں 11، ہم لوگ جا رہے ہیں مارکیٹ
ये हैं गुड़िया बाजी, खाला मेरी, अम्मी, भाई, खालू जा रहे थे मार्केट। मैंने बोला यार पहले खाना खिलवा दो, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन पहले जाना हुआ मार्केट ही, और फिर उसके बाद फाइनली बड़े इंतज़ार के बाद आ गया था खाना, तो सब ने खाना खाया पहले। और उसके बाद मार्केट से आने के बाद जो है हम लोग आ गए थे अंदर हरम में, रोज़ा की साइड। यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, क्योंकि उस टाइम नहीं बैठ पाए थे, तो रात में जो है जगह भी अच्छी मिल गई थी यहाँ बैठने के लिए, तो बस हम लोग यहाँ थोड़ी देर सुकून से बैठे थे। और फिर भाई ने और मैंने अम्मी के साथ थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लिए, तो बस, और फिर खूब सारी दुआएं मांगी। जिन लोगों ने सलाम को कहा था उनका सलाम पेश किया। और ये देखें, ये है जी म्यूज़ियम, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी वगैरह जो है वो सब दिखाई गई है फ़ोटोज़ वगैरह में, बैनर्स वगैरह में। और ये रात का व्यू तो बस देखते रहो देखते रहो। अब इस टाइम हो रहे हैं 3:30, हम लोगों ने पढ़ ली तहज्जुद की नमाज़, और अब हम जा रहे हैं होटल, क्योंकि अज़ान तो अभी यहाँ 5 बजे के करीब होगी, तो अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए घर जा रहे हैं। हो गया था नेक्स्ट डे, और फिर हम लोग जो है सारे के सारे रेडी होकर जा रहे थे मदीना की ज़ियारत के लिए। ज़ियारत पर तो पहले भी गए, लेकिन इस बार जो है थोड़ा ख़ास था, क्योंकि इस बार हम लोग जाने वाले थे एज़ अ फैमिली अपनी खाला और खालू के साथ, तो बस हम लोग उसी के लिए जा रहे थे। मस्जिद मिस्त्राहा का मैंने आराम करना, अभी नाम चेंज करके दिया मस्जिद बनी हारसा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद में चले गए थे तो वापसी पे भी आए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो थे वो जंग ओहद में शहीद हुए थे, जो दांत थे जंग ओहद में शहीद हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे, जब वापसी पे आए तो यहाँ पे फिर रुके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए इसको मिस्त्राहा भी बोलते हैं, इस्तराहा भी बोलते हैं, कि आराम किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पे रुके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे भी जब अपने चाचा की कब्र पे दुआ करने के लिए जाते थे ना, सैयदना मीर हमजा, जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पे यहाँ पे आराम करके जाते थे। ये आराम वाली जगह थी। अभी इन्होंने मस्जिद मिस्त्राहा, मस्जिद बनी हारसा भी बोलते हैं इसको, ये इसका नाम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो अपना कबीला लेके चला गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुनाफिक है, इसको जाने दो। तो बेटा जो था बाप के पीछे तलवार निकाली, पीछे चला गया कि आपने अपना कबीला वापस क्यों लिया। हजूर ने कहा कि तेरा बाप है, तो इसकी इसी तरह इज्जत कर जैसे तेरा बाप है, छोड़ दे इसको, ये मुनाफिक है। अब्दुल्ला इब्ने अबई बीमार हो गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटा आया कि या रसूल अल्लाह अपनी कमीज़ दे, हो सकता है आपकी कमीज़ डाले तो उनको आराम आ जाए, बख्शिश हो जाए। हजूर ने कमीज़ भी दे दी और कहा कि ये मुनाफिक है। अब्दुल्ला इब्ने अबई मर गया, हजूर के पास आया कि या रसूल अल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें, हो सकता है आप जनाजा पढ़ाएं तो उनकी बख्शिश हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये मुनाफिक है। अल्लाह की तरफ से आयतें नाज़िल हो रही थी कि ये मुनाफिक है। कब्र में उतारने लगे तो फिर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह आप मेरे बाप की कब्र में लुआबे दैन लगा दें, हो सकता है आपकी थूक से बख्शिश हो जाए। हजूर ने अपनी थूक भी लगा दी, क्योंकि बेटा सहाबी रसूल था ना, तो हजूर ने थूक भी लगा दी, लेकिन कहा कि ये मुनाफिक है। इसीलिए उसको कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अबई, मुनाफिकों का सरदार। मदीना की बातें मक्का, मक्का की मदीना पहुंचाता था, इसलिए वो मुनाफिक था। उस टाइम पे भी ये लोग थे, ठीक है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करने का मकसद यही था कि मक्का के कुफार तंग करते थे, हजूर तंग आके मदीना में, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10, 12 या 13 साल गुजरे हैं मदीना में। तो जहाँ जहाँ गुजरे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ वहाँ पे छोटी छोटी ज़ियारतें बनी हुई हैं। तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे ये आप सुन्नत अदा करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ गए हैं। लेफ्ट साइड पे छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबल रुमाद, जबल रूमा की कहते हैं, रूमा का पहाड़। ये वो पहाड़ है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज तैनात किए थे, और उनको कहा था कि ये आपने जगह छोड़नी नहीं है जब तक मैं ना कहूँ, जब तक जंग ख़त्म ना हो। लेकिन ये जंग ख़त्म होने से पहले सहाबा नीचे उतर गए थे माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि कफ़ार का जो ग्रोह था ना, ये ओहद पहाड़ के पीछे था। ये सामने सारा ओहद का पहाड़ है। तो जब जंग शुरू हुई, कफ़ार भाग के इधर के, सहाबा नीचे उतर के, कफ़ार ने पीछे से आके हमला किया। तो इस जंग में शहादतें बहुत ज़्यादा हो गई, 70 से 72 सहाबा शहीद हुए।
इस जंग में सबसे बड़ी शहादत थी सैयदना मीर हमजा नबी पाक के चाचा की। उनके बाद शहादत थी अब्दुल्ला बिन जाश नबी पाक के फुफ्फोजात भाई थे और मक्का से इस्लाम की दावत लेके मदीना में आए थे। उनके बाद शहादत थी मूसा इब्न उमैर की। मूसा इब्न उमैर इस जंग के कमांडर भी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे और मक्का के मीर तरीन आदमी मूसा इब्न उमैर थे। मूसा इब्न उमैर ऐसे सहाबा थे कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली से 2-3 दिन तक खुशबू नहीं थी जाती। मूसा इब्न उमैर महंगी तरीन खुशबुएं लगाया करते थे। उनकी भी शहादत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। ये 3 सहाबा सैयदना मीर हमजा, अब्दुल्ला बिन जाश और मूसा इब्न उमैर, 3 की कब्रें एक जगह पे हैं। 60 और 67 कमों पेश हो सकता है 2 ज़्यादा हो सकता है 2 कम हो, उनकी एक जगह पे कब्र है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, सलाम पेश करेंगे, फातिहा नहीं करेंगे, दुआ शुआ करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शोहदा की कब्रों पे हर बुध वाले दिन आते थे। मस्जिद नबी से पैदल चलते थे, कभी अपनी सवारी पे, तो यहाँ पे चाचा की कब्र पे सलाम पेश करके जाते थे। ये राइट साइड पे जितना भी नज़र आ रहा है पहाड़, इसी का नाम है जबल ओहद, ओहद का पहाड़। ये ओहद पहाड़ की चौड़ाई 3-3.5 किलोमीटर है, लंबाई 7-7.5 किलोमीटर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ और ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। और क़यामत वाले दिन ये सारा ओहद का पहाड़ जन्नत में जाएगा। ये जन्नती पहाड़ है और ये वो पहाड़ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला भी था। चला इसलिए था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चाचा की शहादत हो गई ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था इनको जन्नत अल बकिया में लेके जाया जाए, इधर आपका होटल है। लेकिन जब उठा के चलने लगे तो ओहद पहाड़ भी पीछे हरकत की, चल पड़ा। जब चला तो फिर अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई, मेरे प्यारे इनको यहीं पे दफना दें, नहीं तो ओहद पहाड़ बकिया वाली जगह पे चला जाएगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को यहाँ पे दफनाया। अभी हम सुन्नत अदा करेंगे, यहाँ पे कब्रस्तान है, फातिहा नहीं करेंगे, दुआ शुआ करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे नज़र आ रहा है ना। इसके अंदर कमों पे 67, 60 और 67 सहाबा एक जगह पे है। ठीक है, इनको एक जगह पे इसीलिए दफनाया गया था कि उस टाइम पे इतना कफन नहीं था कि हर सहाबा को अलग अलग कफन बनाया जाए। कफन की कमी की वजह से कमों पे 60 और 67 सहाबा इधर है और 3 सहाबा वो सामने 2 पत्थर अंदर नज़र आ रहे हैं। 3 बड़े पत्थर में सैयदना मीर के कमांडर थे। 3 सहाबा उधर हैं, 67 इधर है। कमों पे 70, कुछ 72 बोलते हैं, कुछ 75 बोलते हैं, मुख्तलिफ, लेकिन तकरीबन 70 ही सहाबा है। तो अभी आप यहाँ पे हलमद शरीफ पढ़े, कुल शरीफ पढ़े, दुआ करें। आपने अपने लिए दुआ करनी है, लेकिन ये सहाबा भी जनती है। तो अभी आप दुआ कर ले मजीद, और दुआ करके फिर ये बोर्ड के ऊपर भी दुआ लिखिए, ये भी पढ़ लीजिए। बस उसी के बाद से बाहर जो है ये सब स्टॉल्स वगैरह थे, तो यहाँ से अम्मी ने कुछ सामान लिया, खाला ने भी, और पुदीना लिया। उसकी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती, इतने लेयर्स में भी महकती है। तो वो हमने यहाँ से लिया और फिर निकल पड़ी। ये डिस्ट्रिक्ट उस्मान है और यहाँ पे एक कुआं था जिसका नाम था बेर रुमा। ये कुआं है कि यहूदी के पास था और यहूदी इस कुएं का पानी बेचता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ये जो कुआं खरीद के वक़्फ़ करेगा मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा और मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। तो हज़रत उस्मान को पता चला तो हज़रत उस्मान यहाँ पे आ गए और यहूदी से बात की। पहले तो यहूदी ने मना कर दिया, अगर माना ही माना तो वो कहता है कि चलो जी मैं आधा कुआं दे देता हूँ। पता नहीं उस टाइम पे दिनार दिए या दिरहम दिए, उस टाइम पे जो भी चलता था वो दिया और हज़रत उस्मान गनी ने आधा कुआं खरीद लिया। आधे में ये था कि एक दिन बारी हज़रत उस्मान की होगी और एक दिन यहूदी की होगी। जिस दिन हज़रत उस्मान की बारी होती थी सारा मदीना पानी लेने के लिए आता था क्योंकि वो फ्री देते थे, और जिस दिन यहूदी की होती थी उस दिन कोई नहीं था क्योंकि वो पैसे लेता था। टाइम गुजरता गया, यहूदी को फ़ायदा न हुआ, उसने दूसरा कुआं भी दे दिया। हज़रत उस्मान गनी ने सारा खरीद के वक़्फ़ कर दिया और जन्नत की बशारत ले ली। बाग भी बंद किया हुआ और वो कुआं भी बंद किया। अंदर कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में खोले, लेकिन ये कारनर से शुरू होता है और काफ़ी आगे तक बाग है और पीछे भी काफ़ी लंबाई है। और ये कुआं जो था ये हज़रत उस्मान गनी ने खरीद के वक़्फ़ किया था मुसलमानों के लिए। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और वो पीछे कॉर्नर तक है। ये बाग भी अंदर, इसी के अंदर वो कुआं है जो हज़रत उस्मान गनी ने ख़रीद के वक़्फ़ किया था यहूदी से। ठीक है, हज़रत उस्मान गनी उस टाइम पे भी गनी थे, आज भी गनी है। हज़रत उस्मान गनी के नाम पे कभी होटल, आपका जो अंदलस पैलेस होटल है ना, उसके साथ एक वक़्फ़ उस्मान बिन अफ़ान होटल है।
उस होटल की जितनी इनकम आती है सारी हज़रत उस्मान गनी के अकाउंट में जाती है। अकाउंट में जाके कुछ पैसे मदीना की गरीब बेवा औरतों में चले जाते हैं और कुछ मस्जिद नबी के फ़ंड में चले जाते हैं। आज भी सदका जारिया उनके नाम पे चल रहा है। उस टाइम पे भी गनी थे, आज भी गनी है। और इस बाग की भी जो इनकम है वो भी सेम यही तरीक़ाकार है। इनके अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट में जाके कुछ गरीब लोगों में चले जाते हैं, कुछ मस्जिद नबी के फ़ंड में चले जाते हैं। ये सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इस सब मशरू वक़फ़ बेर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और इसके अंदर अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में खोलें। और ये सारी जगह हज़रत उस्मान गनी की मलकियत है। खरीद से उनके अकाउंट तक भिजवा देते हैं। अच्छा। जब वो खजूर पकती है तो ये बोलियाँ लगती हैं। जो पैसे ज़्यादा लगाता है वो ख़रीदता है, तो वो फिर पैसे जो है उनके अकाउंट में जाते हैं। अकाउंट में जाके उसी अकाउंट से वो जो मस्जिद नबी के पास होटल बना वो उसी अकाउंट से बना। अच्छा। ठीक है ना, सदका जारिया चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि अभी मक्का में भी जगह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मक्का में भी उनके नाम का होटल खोलेंगे। होटल के बाहर बकायदा लिखा है वक़फ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत उस्मान के नाम पे वक़फ़ है। होटल ये रहने वाला है, जो बिल्डिंग है ना पूरी बिल्डिंग है। पहले हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा जो फ़लस्तीन में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला खाना काबा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ किसी सबब से आए हुए थे। कुछ रवायात में आता है नमाज असर का टाइम था, कुछ में आता है नमाज ज़ोहर का टाइम था। ज़्यादा यही कहते हैं कि नमाज ज़ोहर का टाइम था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे, या ज़ोहर या असर नमाज अदा कर रहे थे। और अदा करते करते बार बार उस्मान की तरफ देखते थे और अपनी ख्वाहिश का इज़हार अल्लाह के साथ करते थे। बोलते हैं 2 रकात नमाज अदा कर ली और 2 रकात बाकी थी, तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज बार बार ऊपर देख रहे थे। तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मेरे प्यारे आपका बार बार सर उठाना हमने कबूल कर लिया है। मशरक भी आपका है, मगरब भी आपका है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है। लिहाजा जिधर दिल करता है आप रुख चेंज कर लीजिए। बोलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात बैतुल मुक़द्दस को रुख करके पढ़ी और 2 रकात के बीच ही घूम के खाना काबा को रुख चेंज कर लिया। जब खाना काबा को किया तो जो पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे थे कुछ सोच में पड़ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूम के ऐसे क्यों चले गए हैं। लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही दिल से मानते थे उन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमे, वो भी घूम गए। वो थे 10 सहाबा जिनको बोलते अशरा मुबशरा। अशरा मुबशरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। अशरा मुबशरा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दुनिया में दे दी, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे बिना समझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। अभी आपने यहाँ पे जाना है, 2 रकात नफल पढ़ लें या फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। आ रहे हैं, इस मस्जिद के 2 ही गुंबज हैं और इस मस्जिद के 2 ही किबले हैं। लेकिन अभी किबला ख़त्म करके उसकी निशानी रखी हुई है। पहला हमारा किबला जिधर था, निशानी इसलिए मिटाई है, वो किबला इसलिए मिटाया, हमारे लोग आते थे 2 रकात नफल उधर पढ़ते थे, 2 रकात इधर पढ़ते थे, इस वजह से इन्होंने एक किबला ही ख़त्म कर दिया, उसकी निशानी रखी हुई है। अभी आप यहाँ पे जाएँ, 2 रकात नफल पढ़ लें, अगर नमाज का टाइम होता है या नमाज पढ़ लें या नफल पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने सुन्नत अदा करनी है, चाहे नमाज पढ़ लें तो चाहे जो है ना नफल पढ़ लें। कहाँ भाई साहब? ग़ज़वा खंदक, जंग खंदक इस्लाम की 3री जंग, और इसको सबा मसाजिद के नाम से भी मशहूर होती है। ठीक है ना, जंग खंदक इस्लाम की 3री जंग थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था ये जंग बाहर जाके मैदान में लड़ी जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, तो हर एक सहाबा ने अपना अपना मशवरा दिया। लेकिन जब हज़रत सलमान फ़ारसी की बारी आई तो उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह यहाँ पे खंदक खोदते हैं। खंदक यानी खड्डा, खड्डा यानी कि ट्रंच, लंबा सा ट्रंच। तो इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया, क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी उम्र में बड़े थे, बूढ़े थे। तो उनके मशवरे के ऊपर अमल किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खंदक खोदनी शुरू कर दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूक काट के खंदक खोद दी, पेट के ऊपर पत्थर बांध के खंदक खोद दी। सब सहाबा ने एक एक पत्थर बांधा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे और खंदक खोदी।
تو اسی طریقے سے یہ خندق کھود لی گئی اور یہ جنگ شروع ہو گئی. یہ جنگ 20-22 دن تک جاری رہی ہے. 20-22 دن تک اس کی کوئی پتہ نہیں تھا کب ختم ہوگی, لیکن اللہ کے نبی بار بار اللہ کے آگے دعائیں کر رہے تھے. تو اللہ کی طرف سے 20-22 دن کے بعد دعا قبول ہوئی. اللہ کی طرف سے آندھی خوا طوفان آیا جس میں کفار مکہ غرق ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مل گئی. کفار کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا, یہ کیا نہیں ہوا. تو اسی طریقے سے یہ 20-22 دن کے بعد فتح مل گئی. خندق والی جگہ بالکل سامنے جو سگنل نظر آ رہا ہے بند ہو رہا ہے جا رہا ہے, بند ہو رہا ہے جا رہا ہے, یہ خندق والی جگہ تھی ایسے, ٹھیک ہے نا. تو باقی یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہوں. لیفٹ سائڈ پہ اوپر جو مسجد ہے اس کا نام مسجد فتح ہے. مسجد فتح والی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. اس کے نیچے مسجد سلمان فارسی ہے, ادھر حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا. بالکل سامنے مسجد ہے مسجد عمر بن خطاب, یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب کا خیمہ تھا. وہ پیچھے مسجد اوپر ہے اس کا نام مسجد علی ہے, وہاں پہ حضرت علی کا خیمہ تھا. تو اسی طریقے سے اس کے نیچے مسجد فاطمہ ہے, یہ پیچھے بالکل وہاں پہ حضرت بی بی فاطمہ کا خیمہ تھا. اصل میں جہاں جہاں پہ یہ جنگ کے دوران خیمے تھے نا صحابہ کے, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی گئی. تو یہ مسجدیں آج بھی موجود ہیں. مسجدیں ساری بند ہیں. آپ نے جانا ہے یہ بڑی مسجد میں, تو یہاں اوپر جو مسجد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں پہ دور کا نفل پڑھ کے تو آ جانا. پھر انشاءاللہ ہم آپ کو حضرت امام حسین کی بیٹی کی گھر کی زیارت کروائیں گے. باقی اللہ خیر کرے. میں جب کہیں گاڑی روکتا ہوں تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ اوپر مسجد ہے نا جو, وہاں پہ جانا ہے. بڑی میں رہنے دیں, نفل ہے نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کیوں بھیج رہے ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے سنت ادا کرنی ہے. وہاں مسجد فاطمہ ہے, وہ ہے فاطمہ مسجد. یہ ہے حضرت علی مسجد, یہ والی. یہ بس ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر. یہ دیکھیں, یہ ہے اس کے اندر جا رہے ہیں. وہ فاطمہ مسجد, حضرت علی کی مسجد. تو اب چلتے ہیں. یہ تھوڑی تھوڑی کوبا مسجد جیسا مطلب مجھ کو لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نہ لگے تھوڑا تھوڑا, کیونکہ وہ بھی ایسے ہی اونچائی پر جا کر ہے اور وائٹ ہے پوری. آنے کی دھرتی. یس گائز, اب ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد الفتح, جو میں نے آپ کو پہلے ابھی کار میں سے دکھائی تھی دور سے. تو پہلے جب لاسٹ ایئر ہم لوگ آئے تھے تو یہ جو آپ کو اسٹیئر کیس دکھ رہے ہیں یہ سیمنٹڈ بنے ہوئے کنکریٹ کا, یہ بالکل کچا تھا, مطلب پتھر ہی تھا پورے میں. یہ جو ادھر لیفٹ میں آپ کو دکھ رہا ہے ایسا تھا. تو اب یہ اس سال جو ہے یہ رینوویٹ ہو گئی ہے, پورا جو ہے سب اسٹیئر کیس بنا دیے ہیں تو ایزی رہ رہا ہے. اور یہ جو ہے آگے بھائی چل رہے تھے, گڑیا باجی اور خالو, اور میں تھوڑا پیچھے چل رہے تھے. تو یہ بڑا اچھا سا انہوں نے جو ہے پاتھ وے بنا دیا ہے, ایسے لیفٹ رائٹ پورا ایسے گھوم گھوم کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو ہم لوگ جا رہے ہیں. اور یہ آ گئی تھی مسجد الفتح. یہاں پر جو ہے بتاتے ہیں ہمارے ٹورسٹ گائیڈ جو تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر حضور کا جو ہے وہ خیمہ تھا. اور یہ مسجد کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی ان کی جو ہے وہ دعا قبول ہوئی تھی. تو بس ہم سب نے بھی یہاں پر جو ہے نفل نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد جو ہے نکل گئے. حضرت امام حسین کی بیٹی, ان کو پیار سے فاطمہ کے نام سے بلاتے تھے, فاطمہ بنت حسین. ٹھیک ہے نا, کس کا ہے یہ؟ یہ حضرت امام حسین کی بیٹی کا گھر ہے. ٹھیک ہے, پیار سے فاطمہ کے نام سے بلاتے امام حضرت امام حسین کے, حضرت امام حسین. ٹھیک ہے نا, پیار سے ان کو فاطمہ کے نام سے بلاتے تھے. کچھ بولتے ہیں کہ ان کا نام سغرا تھا, کچھ بولتے ہیں ان کا نام زینب تھا. اللہ جانتا ہے سغرا تھا یا زینب تھا, لیکن یہ سارا گھر آج بھی موجود ہے. اس کی ہسٹری بھی موجود ہے, میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بھی دکھاتا ہوں. اور یہ حکومت نے بند کر کے رکھا ہوا. ٹھیک ہے نا,
یہ بڑے ہیں جی سرکل صاحب. یہ سامنے گھر کے ساتھ کنواں تھا. یہ کچھ بعد میں انہوں نے مینٹیننس کیا ہوا خلافت عثمانیہ میں بھی, اور باقی یہ سارا موجود ہے. یہ گھر ہے اور یہ کنواں تھا آگے والی سائڈ پہ. اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ مسجد الوادی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے آگے میں آئے نا تو یہاں پہ جمعے کی نماز پڑھائی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سائڈ سے مسجد نبی والی سائڈ پہ چلے گئے. مسجد جمعہ سے آگے والی سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ننیال تھا, نان کا گھر تھا, اسی سائڈ پہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جمعے کی نماز پڑھا کے گئے. تو یہ رائٹ سائڈ پہ جتنا بھی باغ نظر آ رہا ہے, یہ باغ ایک ولی اللہ تھے, ان کا نام تھا امام احمد رفاعی. یہ امام احمد رفاعی محدث بھی تھے اور حدیثیں لکھا کرتے. یہ سارا باغ انہیں کے. اسی طریقے سے ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قباء والی سائڈ پہ. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے اتنا نور چڑھ گیا تھا. جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو 3-4 قبیلے تھے, تو ان کو پتہ نہیں تھا چل رہا نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے. حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سایہ کیا. پھر پتہ چلا کہ یہ نبی اور یہ ابو بکر ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں رہ کے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. بالکل سامنے 4 مینارے والی مسجد, مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد. مسجد نبوی سے پہلے یہ مسجد تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے یہ مسجد بنائی. 10 سے 12 دن میں مسجد بنائی. تو مسجد نبی والی سائڈ پہ چلے گئے. رستے میں مسجد جمعہ دکھائی ہے, اس کو کراس کرتے کرتے مسجد نبی کے قریب چلے گئے تو سارا مدینہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر آئے, ہمارے گھر آئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا مقام ہوگا. اونٹنی چلتے چلتے جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے آگے بیٹھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی والی جگہ 2 یتیم بچے تھے ان سے خریدی. اس کے پیسے جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیے. تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں آتے تھے. مسجد نبی سے کبھی پیدل کبھی اپنی سواری پہ. ٹائم گزرتا گیا تو جو مدینہ کے غریب غربا لوگ تھے یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں, ہم مکہ جا کے عمرہ کر سکے, 10-10 12 دن کا کھانا لے کے جائیں, اونٹوں کی سواری کریں, ہمارے لیے آسانی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 2 رکعت نوافل مسجد قباء میں ادا کرے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوگا. اسی طریقے سے ابھی آپ یہاں پہ جائیں 2 رکعت نفل پڑھیں, پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. جا رہے یہ حج میں بھی تو لوگ ادھر کو آتے ہاں ہے نا, یہ والے روڈ. نہیں وہ تو دوسرا تھا, یہ ابھی بنایا تقریباً سال کے اوپر. یہ ساتھ بھائی وہ باغ تھا جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے کھولا ہے. نور چڑھ گیا. 3-4 قبیلے تھے جنہوں نے حضور کا استقبال کیا تھا. تو اور یہ ہے مسجد قباء. یہاں پر حضور نے کہا ہے کہ اگر کسی نے 2 نفل پڑھے تو اس کو جو ہے 1 عمرے کا ثواب ہوتا ہے. تو یہاں پر بس ہم اندر جا رہے تھے اور ہوا بھی بہت ہی تیز چل رہی تھی. اس کے بعد نفل پڑھے اور بس یہاں سے نکل گئے. جنگوں کے درمیان جب صحابہ کو پھٹ یا کوئی زخم لگتا تھا نا, ان کو یہاں سے مٹی لگاتے تھے, ان کو شفا ہو جاتی تھی. ٹائم گزرتا گیا تو ہمارے لوگ یہاں سے پھر مٹی لے کے جاتے تھے ادھر تک کہ سعودیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے یہاں سے مٹی اٹھا کے 10-20 ریال کا شاپر بیچنا قباء میں, احد میں, قبلتین میں. ٹائم گزرتا گیا, سعودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر گندا پانی ڈال کے باہر سے مٹی لا کے اس کو سارے کو بند کر دیا. یہ سارا حاکے شفا اس کے اندر ہوگی, نیچے دبا دیے. لیکن مسجد میں بیچ رہے تھے جی. یہ سامنے کنواں نظر آ رہا ہے, اس کا نام ہے بحر غرض ویل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ یہاں پہ آئے تو ایک صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شہد ڈالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
हज़रत अली को वसीयत की कि जब मैं दुनिया से रूपोश हो जो दुनिया से चला जाऊँ, इस कुएँ के पानी से मुझे गुस्ल दिया जाए। उनकी हिदायत के मुताबिक आखिरी गुस्ल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अली यहाँ से पानी लेके गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। इस कुएँ का पानी जन्नत के चश्मों से एक चश्मे, जैसे जन्नत का पानी ऐसे इस कुएँ का पानी 3-4 महीने से पानी बंद किया हुआ है। कुआँ रात को खोलते हैं, कभी खोल देते हैं। पानी भी पिछले दिनों में सुना था खुला है, आप उतर के ज़ियारत कर लें तो फिर पहले तो पानी मिलता हाँ, था, जब हम ये पहले आए थे तो बंद था ना पानी, खुश्क वो हाँ। पानी वगैरह नहीं था। और ये हमारे बाद में था उसमें ये कुएं के साइड तो पूरी बाउंड्रीज लगा दी थी। इस साल लास्ट ईयर जब हम आए थे तो खुला था, तो हम लोग अंदर भी गए थे। तो यहाँ पर बाहर सब ये पिक्चर्स वगैरह लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसी से दिखा दूँ। ये पहले जब हम आए थे तो पूरा खुला हुआ था। ये देखेंगे ये कुआं और इसका पानी, ये इधर से तो क्या कहते हैं वो सब कवर कर रखा है, लेकिन यहाँ बाहर थोड़ी बहुत पिक्चर्स लगा रखी हैं। ये तो बहुत ऊंचा था। हाँ ये ऊँचा हाँ हाँ बन गया, साकिब बन गया। ये भी लग गए ही ना यहाँ पे, जब ये नहीं लग गए थे तब तो हम अंदर गए। ये है वो कुआं। अरे 1-1 महीने में कर रहे हैं तब्दीली, वो कर रहे हैं। ये सामने ये कच्ची दीवार जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना में आए थे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ महाजरीन आए थे मक्का से। वो महाजरीन को मदीना वालों ने यहाँ पे जगह दी थी, मोहल्ला। अच्छा, बिल्कुल ये सामने बाग शुरू हो जाता है। ये बाग सारा हज़रत सलमान फारसी है, यहाँ से शुरू होता है काफ़ी पीछे तक। ये सारा बाग हज़रत सलमान फारसी का है। ये वो बाग था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया। 270 या 300 के करीब जो दरख्त लगाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहूदियों ने इनकी गुठलियाँ निकाली थी। ये बगैर गुठलियों के बड़े बाग हुआ था। ये हज़रत सलमान फारसी का बाग था। अभी लोगों ने अलग रीजनल जो जगह थी ना जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाए थे, कुछ बोलते हैं वो सामने वाइट मदरसा है, कुछ उसके आगे खाली जगह है। रीजनल जगह का कोई नहीं पता, लेकिन ये बाग सारा कहलाता है हज़रत सलमान फारसी का। ठीक है, लोगों ने अलग बिजनेस बनाया हुआ है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है। खजूरों की दुकानें डाली। जी जी। इसके अंदर चले जरा, बिना गुठली की खजूर ले लेंगे हम यहाँ से बस। मिलती होंगी यहाँ तो, मिलती हैं, लेकिन ये नहीं पता इस बाग की बाहर से लेगी। ये है जी बाग। और फिर आ गए हम लोग अंदर। यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना था वो लिया हम लोगों ने। फिर बाग में आए हैं और ये हमारे ख़ास मेहमान, खुसूसी मेहमान सब बैठे हैं। कुछ लेंगे आप लोग? खजूरें और कहवा ले आइए। ओफो, अम्मी का कैसा दुग्गा हो गया। लाओ चलो दूसरे वाले बाग में, चलो वो बड़ा है। बिना तुम भी आओ। चलो। था एक सहाबा थे जिन्होंने जंग ओहद के दौरान इस्लाम कबूल किया था। इनका नाम था हज़रत मुगीरा बिन शुबा। ठीक है, ये उनका घर था। पहले नीचे काले पत्थरों का था, बाद में पता नहीं खिलाफत उस्मानिया में या सऊदी हुकूमत ने या किसने बनाया, लेकिन अभी टूटने वाला है। इसको टेकें लगा दी हुई हैं, या गिराते हैं या बनाते हैं, अल्लाह जानता है। लेकिन ये सारा मुगीरा बिन शुबा का घर है, हज़रत मुगीरा। तो बाकी ये भी सारा कहलाता है हज़रत सलमान फारसी का बाग है। यहाँ से भी दरख्त उखाड़ के अभी रोड बना रहे हैं बीच में। ये तो लग भी रहा है पुराना। बताइए नई यात्रा के साथ दोबारा बोलिए। बताइए। आपकी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं कल नई यात्रा के साथ। तो ये थी मदीने की ज़ियारत। ये हमारे गाइड बहुत ही अच्छे थे, इन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इनका नंबर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और आप लोग मदीना जाएं तो इन्हीं के साथ जाया करें ज़ियारत के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।